Bismillahirrahmanirrahim. We were discussing on the topic of literature search and literature searching strategies and evidence-based medicine or pharmacy practice based upon literature searching and what strategies should be followed. In this connection, what we need to do or what we have done, we have discussed some parts and we will just recall them from the first lecture very quickly that what we have already discussed. We have discussed the introduction regarding the information that it is published every day. Enormous amount of accumulated information creates a need for efficiency when searching for the information. History and evolution, where we have discussed that what changes has been done, the role of British physician Archibald Cochrane, and the systematic approach, what systematic approaches are necessary, how you can make your searching of literature efficient and effective. Then quality of literature, how you can check the quality, what are the different sources of information, primary literature, secondary literature, and tertiary literature and their examples. What is primary literature? We have already discussed evaluation of primary literature, secondary literature, and secondary literature databases like Medline, Scopus, Embase, Google Scholar, etc., IPA, journal guideline for efficient secondary literature searching. This is one of the website for secondary literature searching, PubMed. How you can make a manageable to your searching, how you can use the keywords, what is necessary, how you can filter the topic, and you can specify the topic and you can search the relevant research and relevant topics. Search techniques, keywords, synonyms, acronyms, you can use alternative spellings, both you can use related terms, you can use the boolean operator or boolean search and or not method, so that you can get that thing which is relevant, and irrelevant thing is not coming out in your search. Search techniques, chaining techniques, combining words, phrasing words, focusing a search, and then like you can check based upon the human, animals, any published in the last, any date added to the PubMed in the last, based upon that humans and animals, type of articles की बेस पे, सबसेट की बेस पे, एज की बेस पे, जेंडर की बेस पे. Tertiary literature, what is tertiary literature? We have already discussed examples of tertiary literature like practice guidelines, review articles, compendia, textbooks, and leaflets, etc. This is what we have discussed in the last slide, in the last lecture, the hierarchy of evidence or hierarchy of literature. What is the strongest evidence and what is the weakest evidence, and what are not scientific evidences. तो इसको हमने डिस्कस कर लिया था. Now today we are going to continue with the database, which is PubMed. So if you can see here the PubMed, here you can make you can use the boolean operator by clicking the advanced, and you can find here using PubMed quick start guides, full text articles, and PubMed frequently asked questions, PubMed tutorials, new and noteworthy materials, PubMed tools, PubMed mobile app is also available, single citation matcher and batch citation manager, clinical queries, topic specific queries you can find here. More resources, medical subject heading database. So if you are writing a research paper and you want to check your keywords are based upon medical sub heading, search heading or medical subheading, that it matches over there, so you can use this database. Journals in NCBI database that can also be accessed from this website. Clinical trials, utilities, and link out, like for example latest literatures, American Journal of Clinical Nutrition, literature of blood, name, cell, circulation. These are Cochrane database, systematic reviews, drugs. These are all the literature, latest literatures. Trending articles, which are
in PubMed records with recent increases in activity. These are the articles in increase in activity, more in the topic. Like for example, nowadays you will find COVID related topic, PubMed commons, the common issues, common topics. Then you can also have PMC. This is also one of the database, okay, which is called PubMed Central. PMC is a free full text archive of biomedical and life sciences journal literature at the US National Institute of Health's National Library of Medicine, NIH and NLM. And you will get here started from the PMC overview, user guide, journals list, PMC frequently asked questions, copyright notices, participates in information for publisher, add a journal to PMC, participants agreements, files submission and specifications, keep up to date about what is the situation, other resources, PMC International. These are the end. Around 4.1 million articles are archived in PMC. Content provided in part by full participants, NIH portfolios and scientific deposits. So you can get access these informations from this database. You can also have another database which is called Biomed Central. You can explore journals get published about Biomed Central. Journal, here you can find journals A to Z like biomedicines, chemistry, dentistry, education, engineering, environmental sciences, life sciences, material sciences, mathematics, medicine and public health, pharmacy, philosophy, physics, physiology, and many more topics. Here you can find the biomedicine journals, like for example ACTA, Neuropathologica, Communications, and Alzheimer's Research and Therapy. There are many types of journal which can be accessed from biomedicine journals, which can be accessed from this Biomed Central. So it is also one of the very good database for finding different type of research articles, especially the primary research. In Google Scholar, it is also very good website, very good database. Google Scholar, you can find many different type of articles, not only the life sciences but also management sciences, social sciences, engineering sciences, astrological sciences. Many different type of articles from you can search here, and you can get the primary literature, secondary literature, tertiary literature, or different type of literatures. You can also make a specification for the duration that you need the article from, like for example from 2010 to 2020. So you can use this filter. So based upon that you can get the articles only for this 10 year. तो उसमें ये होगा कि आपको सिर्फ वही 10 साल के आर्टिकल मिलेंगे, और वो 10 साल के आर्टिकल जो अगर क्योंकि आपकी सिलेक्टेड सर्चिंग होगी तो वो भी आप कर सकते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ी डेटाबेस है. देन अमंग द लोकल सिस्टम, लोकल साइट्स, पाक मेडीनेट, ये एक वेबसाइट है, पाकिस्तान लार्जेस्ट मेडिकल इंफॉर्मेशन गेटवे है. टॉप डिस्कशंस, रिसर्च गाइडलाइंस, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान डिजर्टेशंस, वो है. रिसर्च साइनॉप्सिस हैं, मेंबर सर्विसेज हैं, मेंबर भी बन सकते हैं. कीवर्ड की सर्च फॉर मेडिकल जर्नल ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं पाकिस्तान के मेडिकल जर्नल से. सर्च ड्रग इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे ड्रग नेम और जेनेरिक एंड ट्रेड नेम, उसकी बेस पर आप ड्रग के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन और आर्टिकल्स ले सकते हैं. ये जो है जंप टू द जर्नल पेज, लिस्ट ऑफ द जर्नल्स, तो आप उस पर भी जंप कर सकते हैं. द लेटेस्ट इशूज़ सबमिट योर आउटलाइन टू आवर एक्सपर्ट्स ऑनली, तो वो भी आप कर सकते हैं. टॉप डिस्कशन टॉपिक्स भी आप चेक कर सकते हैं. तो यहाँ से आप जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी लिटरेचर हो या चाहे सेकेंडरी लिटरेचर हो या फिर कोई जो है वो टर्शरी लिटरेचर हो. तो ये लोकल वेबसाइट है, लोकल डेटाबेस है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है रिगार्डिंग द लोकल आर्टिकल्स एंड लोकल रिसर्च. अच्छा, एक और ये है नेशनल डेटाबेस ऑफ इंडियन मेडिकल जर्नल्स. ये इंडियन मेडिकल जर्नल्स हैं, उनकी जो है वो एक वो डेटाबेस है. ये क्या कर रही है, जो मेडिकल जर्नल्स की जो इंडिया की जो वेबसाइट है, प्रोवाइड फ्री फुल टेक्स्ट आर्टिकल पब्लिश्ड इन सेलेक्ट इंडियन बायोमेडिकल जर्नल इन टेक्स्ट इन मैड, इंडियन मैड और पबमेड. इंडियन मैड या पबमेड में जो इंडेक्स्ड हैं जर्नल, उनके आर्टिकल जो होंगे फुल टेक्स्ट आर्टिकल आपको मिल सकते हैं. यानी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है,
और यू कैन एक्सेस दीज आर्टिकल्स एंड जर्नल्स, और उसमें जो है वो आपको पूरा फुल टेक्स्ट आर्टिकल मिल जाएंगे जो कि आपकी ज़रूरत होगी अपनी रिसर्च के लिए, और या जो रिसर्च क्वेश्चन के हवाले से आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसको एक्सेस भी कर सकते होंगे और आप उसको यूटिलाइज़ भी कर सकते होंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी डेटाबेस है जिससे आप बहुत सारा मटेरियल जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और उसकी सर्चिंग कर सकते हैं, जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल एशियन जर्नल ऑफ ट्रांसफ्यूजन साइंसेस, दिल्ली साइकेट्री जर्नल्स, एंडोडोंटोलॉजी, गुजरात मेडिकल जर्नल, हेल्थ एंड पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव्स एंड इश्यूज़। तो ये जो है एक जो है वो बहुत अच्छी वेबसाइट है, नेशनल डेटाबेस ऑफ इंडियन मेडिकल जर्नल, जो कि ये कंसिडर की जाती है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इस्लामेडेक्स। इस्लामेडेक्स क्या है? इंडेक्सिंग बायोमेडिकल जर्नल पब्लिश्ड इन इस्लामिक कंट्रीज़। ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ में जो रिसर्च पब्लिश हो रही है उसमें जो बायोमेडिकल जर्नल हैं उनको इंडेक्स किया हुआ है, उनकी जर्नल लिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उनसे रिलेटेड उनमें जो कुछ पब्लिश हो रहा है वो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, और आप कोई लिमिट लगाना चाहें कि भाई मुझे ये लिमिट के दरमियान का चाहिए या ये इस तरह के चाहिए, यानी बूलियन ऑपरेटर आपको यूज़ करना है, स्पेसिफाई करना है कि सिर्फ आपको जो रेलेवेंट आर्टिकल हो, रेलेवेंट रिसर्च हो, रेलेवेंट लिटरेचर हो वो फाइंड आउट हो, तो आप यहाँ पर जो है उसकी लिमिट भी लगा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है और डेटाबेस है जहाँ से आप बहुत सारे बायोमेडिकल जर्नल्स जो इंडेक्स हैं इसमें उनके जो है रिसर्च को फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो रिलेवेंट आर्टिकल अपने पर्पज़ के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक और है डेटाबेस, दिस इज़ कॉल्ड अफ्रीकन जर्नल ऑनलाइन, AJOL। ये जो है अफ्रीकन जर्नल ऑनलाइन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड प्री एमिनेंट कलेक्शन ऑफ पीयर रिव्यूड अफ्रीकन पब्लिश्ड स्कॉलरली जर्नल्स, यानी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं तो उसमें जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं और वो पीयर रिव्यूड हैं, तो वो जो है यहाँ से इस ऑनलाइन वेबसाइट से, इस डेटाबेस से आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें जर्नल्स की भी आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से जर्नल शामिल हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। एडवांस सर्च करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, और रिसोर्सेज क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पे इसको रजिस्टर करना पड़ेगा फुल टेक्स्ट डाउनलोड के लिए, यूज़र आईडी पासवर्ड इसके एक्सेस के लिए, इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसमें ये कि कुछ डेटाबेस जो है वो पेड हैं, कुछ जो है फ्री हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फ्री हो वो आपको ज़्यादा जो है वो एक्सेस करोगे। हाँ, अगर कहीं भी आपके पास कहीं से फंडिंग मौजूद है अपनी रिसर्च के लिए तो फिर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी डेटाबेस को, जहाँ से जो है आपको बहुत सारे आर्टिकल जो है वो एक्सेस हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो बता रहे हैं कि अफ्रीकन जर्नल ऑनलाइन जो है होस्ट 520 जर्नल्स है, इसमें तकरीबन 520 जर्नल हैं जो इसकी लिस्टिंग में शामिल हैं, एंड 213 ओपन एक्सेस जर्नल्स, और उसमें से 213 जर्नल ऐसे हैं जो ओपन एक्सेस हैं यानी फ्री हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, आपको वो आर्टिकल जो है वो मिल सकते हैं। तो दैट इज़ ग्रेट, यानी आपको बहुत सारी जो है इसमें आर्टिकल और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और ये पीयर रिव्यूड हैं, यानी इसमें क्वालिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी के जो रिसर्च होगी, क्वालिटी के लिटरेचर होंगे वो आपको मिल सकते होंगे। अच्छा, एक ये है बायोलाइन इंटरनेशनल। बायोलाइन इंटरनेशनल इज़ ए नॉट फॉर प्रॉफिट स्कॉलरली पब्लिशिंग कोऑपरेटिव committed to providing open access to quality research journal published in डेवलपिंग कंट्रीज़। यानी ये जो है बायोलाइन इंटरनेशनल, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो क्वालिटी रिसर्च पब्लिश हो रही है उसका एक ओपन एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी विदाउट एनी चार्जेस। तो इससे जो है वो आप बहुत सारे जो है वो आर्टिकल यहाँ से भी ले सकते हैं। जो द गोल ऑफ रिड्यूसिंग इज रिड्यूसिंग द साउथ टू नॉर्थ knowledge gap in a crucial to global understanding of health, means tropical medicine, infectious disease, epidemiology, emerging new diseases, biodiversity, environmental, international development, by providing a platform for the distribution of peer reviewed journal। जो पीयर रिव्यूड हैं ब्राज़ील, चिली, चाइना, कोलंबिया, इजिप्ट, घाना, इंडिया, ईरान, कीनिया, मलेशिया, नाइजेरिया, तंजानिया, टर्की, युगांडा, वेनेजुएला, और इसके अलावा बहुत सारे और ममालिक इसमें शामिल हैं जिनके जो है वो क्वालिटी रिसर्च पेपर जो होंगे वो यहाँ पर इंडेक्स हो सकते हैं, उनके जर्नल यहाँ इंडेक्स हो सकते हैं, और उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए, और जो है वो उनको जो है वो अपनी रिसर्च की लिटरेचर सर्चिंग में यहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है जर्नल्स इन द बायोलाइन
इंटरनेशनल सिस्टम कौन कौन से जर्नल हैं, हाउ टू सपोर्ट बायोलाइन, व्हाट इज़ न्यू इन बायोलाइन इंटरनेशनल। तो ये जो है वो प्लीज़ टेक ए पार्ट इन अवर सिंपल सर्वे टू हेल्प अस आउट हाउ बायोलाइन हेल्प्स योर रिसर्च। ये उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि जो है वो इस पे अपनी वो आपका फीडबैक भी लेते हैं कि वो आपको यानी तक, क्योंकि वो ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने सिस्टम को, ताकि वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो। अच्छा, इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है विच इज़ कॉल्ड डिजिटल लाइब्रेरी, ए प्रोग्राम ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। तो ये हायर एजुकेशन कमीशन की सपोर्ट है। यहाँ से भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक बुक, ओपन एक्सेस आर्टिकल्स और वो मौजूद हैं। इसमें इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये जिनको जो है एक्सेस दिया हुआ है, जो यहाँ से डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी दिया हुआ है। इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ लाइक यू नो कि ऑल गवर्नमेंट लेवल यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हो या डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हो या पंजाब यूनिवर्सिटी हो या यूनिवर्सिटी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हो, पेशावर यूनिवर्सिटी हो, जितनी भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं। और सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट HEC इज़ इंटरेस्टेड टू प्रमोट द रिसर्च, दैट इज़ वाई दे हैव गिवन फ्री एक्सेस टू प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। कोई इसके चार्जेस नहीं लेती HEC, ये बिल्कुल HEC की तरफ से फ्री है। आपको ये यूनिवर्सिटी की डेटाबेस पे यानी यूनिवर्सिटी के जो है वो सिस्टम से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप जा सकते हैं और जो है वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बात करें तो उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है प्रोविंस की बेस पे, रावलपिंडी, इस्लामाबाद यानी सेंट्रल जो कैपिटल एरिया, पंजाब का एरिया और सिंध का एरिया, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, तो उसकी बेस पे क्या हुआ है। हम क्योंकि सिंध से ताल्लुक़ है तो हम सिंध पर बात करेंगे। अगर हम सिंध की बात करें तो हम यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं सिंध में, लाइक आगा खान यूनिवर्सिटी, ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ IT कराची, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, दादा भाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन कराची, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची और ये हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची है, इंडस इंस्टीट्यूट है। और इस तरह से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे सिंध में जो हो मौजूद हैं, वो लाइक इखरा यूनिवर्सिटी, इसरा यूनिवर्सिटी, जना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, ये तमाम जगहों पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी इसको एक्सेस किया जा सकता है और आप अपनी रिसर्च को एक्सेस भी कर सकते हैं और अपनी फाइंडिंग ऑफ लिटरेचर के लिए इनको एक्सेस भी कर सकते हैं और इनको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ से जो है वो फिर आप को बहुत सारे जर्नल्स का फ्री एक्सेस मिल जाएगा, वो जर्नल्स भी जो कि पेड हैं, जिनके आर्टिकल पेड हैं, बट फ्रॉम दिस डिजिटल लाइब्रेरी यू कैन गेट ऑल दीज विदाउट एनी चार्जेस, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं और इसके अलावा भी जो कुछ और वेबसाइट्स हैं, लाइक ये एमरल्ड है, रिसर्च यू कैन यूज़। यहाँ पे आप जो है इसको जो है लीडिंग इंडिपेंडेंट पब्लिशर है, रिसर्च विद इम्पैक्ट फैक्टर, बिजनेस, पब्लिक पॉलिसी, हर तरह की एजुकेशन, जिस तरह की यानी लाइफ साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, मेडिकल साइंसेस, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, सोशल साइंसेस, बिजनेस और जिस तरह की भी जो है वो मैनेजमेंट साइंसेस, तमाम को जो है वो यहाँ से भी इस जगह से भी इस डेटाबेस से भी एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा विले ऑनलाइन लाइब्रेरी, ये भी एक डेटाबेस है, तो यहाँ से भी आप बहुत सारी रिसर्च एंड इनोवेशन मुख्तलिफ एरिया में, लाइक एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बिजनेस एंड इकनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ, ह्यूमैनिटीज़, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, या वही है कि बायोलॉजिकल साइंसेस जिसमें आपकी मेडिकल साइंसेस हो गई और बेसिक साइंसेस हो गई, प्रैक्टिकल यानी प्रोफेशनल साइंसेस हो गई जिसमें आपकी मेडिकल साइंसेस, डेंटल साइंसेस और फार्मास्यूटिकल साइंसेस, मैनेजमेंट साइंसेस, सब के जो है वो आप फ़िल्टर करके यहाँ से वो सर्चिंग कर सकते हैं और उस सर्चिंग में आपको वो रिलेटेड जो है वो आर्टिकल्स मिल सकते हैं। इसी तरीके से स्प्रिंगर लिंक है, स्प्रिंगर की वेबसाइट से भी आप बहुत सारी जो है वो रिसर्च को डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं और वो आर्टिकल्स जो होंगे वो आप फ़िल्टर करके बिल्कुल रेलेवेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन यानी लिटरेचर सर्चिंग को बहुत इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मा वर्ल्ड की बात करें, ये भी एक डेटाबेस है
जो क्या है, वेलकम टू द जर्नल्स पेज ऑफ इन्फॉर्मा वर्ल्ड वेयर द स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम टाइलर एंड फ्रेंचाइज एंड साइकोलॉजी प्रेस कम टुगेदर इन वन डेडिकेटेड रिसोर्स। यानी जो है मुख्तलिफ जर्नल्स जो हैं इसके मुख्तलिफ टॉपिक्स के जो हैं वो भी एक्सेस किए जा सकते हैं, और उस यहाँ से भी जो है वो आर्टिकल्स, प्राइमरी लिटरेचर हो, सेकेंडरी लिटरेचर हो या समटाइम्स टर्शरी लिटरेचर हो, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंटायर साइट, सिर्फ पब्लिकेशन या सब्जेक्ट रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपकी रिसर्च में ये हेल्पफुल हो जाए। अच्छा जनाब, ये तो थी मुख्तलिफ लिटरेचर सर्च के लिए जो वेबसाइट्स हैं और जो डेटाबेसेस हैं जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट आर्टिकल और स्पेसिफ़िकली वो टॉपिक्स जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड हैं, जो आपको के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और जो आप भले रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हो उसके लिए चाहिए हो, या रिसर्च साइनॉप्सिस लिखने जा रहे हो या थीसिस लिखने जा रहे हो उसके लिए जो आर्टिकल चाहिए, जो एब्स्ट्रैक्ट्स चाहिए, जो रिसर्च पेपर चाहिए, रेलेवेंट डेटा चाहिए, वो आप इन तमाम जगहों से, इन तमाम डेटाबेस से हासिल कर सकते हैं। एंड दैट कैन बी very helpful to you in a way to get the literature in efficient and effective way. Now हम बात करते चले आ रहे हैं कि एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, क्योंकि जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हैं तो वहाँ पर भी हमें लिटरेचर सर्चिंग की ज़रूरत होती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि जब हम लिटरेचर सर्चिंग में इन्वॉल्व होते हैं या जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं तो उस वक्त जो है बाज़ दफ़ा हमारे सामने रियल लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं या कोई ऐसी क्लिनिकल सिचुएशन आ जाती है जिसको हमें स्पेसिफिकली ट्रीट करना पड़ता है कि उस वो जो है जर्नल, यानी इस तरह का पेशेंट नहीं होता कि उसको हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दें और वो पेशेंट ठीक हो जाए। तो हमें उस वक्त जो होता है एक स्पेसिफिक लिटरेचर चाहिए होता है सपोर्ट के लिए कि वो लिटरेचर क्या कहता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये दरअसल क्या है कि इस सिस्टमिक अप्रोच टू एनालाइज पब्लिश रिसर्च की एक सिस्टमिक अप्रोच है। एनालाइज करेंगे पब्लिश रिसर्च, यानी वही जो आपने डेटाबेस से हासिल की, एज द बेसिस ऑफ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो आपके पास क्लिनिकल सिचुएशन में एक पेशेंट है, उसके हवाले से आपने डिसीजन लेना है कि इसको क्या देना है, क्या ट्रीटमेंट इसको देना है। वो डेफिनेटली आप लिटरेचर के बगैर नहीं डिसाइड कर सकते। तो ये जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस है, ये डिफाइन करती है कि सिस्टमिक अप्रोच है टू एनालाइज द पब्लिश रिसर्च एज द बेसिस ऑफ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। This definition emphasizes on paradigm shift in patient care for experience and expertise to incorporation of evidence in patient care। तो ये जो है वो डेफिनेशन, ये इस चीज़ को जो है, इस पैराडाइम को, शिफ्ट को जो है वो एम्फसाइज कर रही है, उस पर हाईलाइट कर रही है कि पेशेंट केयर इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ एविडेंस इन पेशेंट केयर। यानी ठीक है, ये क्लिनिशियन का अपना एक्सपीरियंस है, अपनी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, उसकी बेस पर किसी पर्टिकुलर पेशेंट को, डिफ़िकल्ट पेशेंट को मैनेज करना चाहता है वो ज़रूर करे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो दे एविडेंस क्या कहता है कि जो ट्रीटमेंट आप देने जा रहे हैं वो पेशेंट के लिए बेस्ट है या नहीं है। तो एविडेंस की बेस पर ये डिसाइड करें रादर दैन गट फीलिंग। Most recently and widely accepted definition of EBM incorporates evidence along with clinical experience and patient preference in clinical decision making। कि ये जो न्यू डेफिनेशन है EBM की, वो ये कहती है क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड एविडेंस अलॉन्ग विद क्लिनिकल एक्सपीरियंस। यानी एविडेंस क्या कहता है उस पर्टिकुलर पेशेंट की सिचुएशन के लिए कि उसको क्या करना है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है और पेशेंट की अपनी प्रेफरेंस क्या है, तो उसकी बेस पर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग की जाए। सो नाउ इट इज़ डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन ऑफ द बेस्ट रिसर्च एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट वैल्यूज़। तीनों को कंबाइन किया, रिसर्च एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ एंड पेशेंट वैल्यूज़, और उसके बाद जो है वो पेशेंट वैल्यूज़ या प्रेफरेंसेस की बेस पे, और फिर ये डिसाइड किया कि उस पेशेंट को किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये जो है न्यू डेफिनेशन है, न्यू कॉन्सेप्ट है अबाउट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, और इसमें भी हमें लिटरेचर सर्च की ज़रूरत पड़ती है और प्रोफेशनल लाइफ में। इन जर्नल EBM इन्वॉल्व्स 4 मेन स्टेप। आप ये करेंगे कैसे, यहाँ पे लिटरेचर सर्चिंग कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आस्क एन अप्रोप्रिएट एंड आंसरेबल क्वेश्चन।
जो भी, अगर आप एज ए फार्मासिस्ट हैं, आपसे फिजिशियन पूछ रहा है कि आपको जो है, आप ये पेशेंट मेरे पास है, ये क्लिनिकल सिचुएशन है, और इस क्लिनिकल सिचुएशन के लिए आप मुझे आंसर जो है वो एविडेंस से चेक करके बताएं कि इसको कैसे मैनेज करना है। सपोज दैट एक पेशेंट है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन का है, और स्टेज 4 हार्ट फेलियर का है, और स्टेज 5 किडनी डिजीज़ का है, यानी बिल्कुल डिफ़िकल्ट पेशेंट है। तो अब इस पेशेंट का हाइपरटेंशन मैनेज करना है, तो उसको कैसे मैनेज करें, क्या मेडिकेशन दें, क्या मेडिकेशन नहीं दें। स्टेज 5 किडनी डिजीज़, स्टेज 4 हार्ट फेलियर, स्टेज 2 हाइपरटेंशन, यानी बहुत ही एडवांस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो पेशेंट, आप फिजिशियन आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है और आंसरेबल है कि भाई ये केस है, ये सिचुएशन है, इसका मुझे आंसर ये चाहिए कि इसके पेशेंट का जो हाइपरटेंशन है उसको मैं कैसे मैनेज करूँ। तो अब इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए, इसका आंसर के लिए आपने बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी से, जैसा हम पिछली स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं, आपने रिसर्च यानी एविडेंस को फाइंड करना है, यानी लिटरेचर को फाइंड करना है। फाइंडिंग करने के बाद उसकी अप्रेजिंग करनी है। अप्रेजिंग मीन्स कि उसका क्रिटिकल एवेल्युएशन करना है, चेक करना है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो ठीक है, वरना अदरवाइज यू नीड टू डिस्कार्ड दैट एविडेंस, और किसी दूसरे एविडेंस को आप तलाश करें जिसकी एविडेंस की क्वालिटी अच्छी, क्वालिटी जो है वो प्रूव हो वाइल यू आर अप्रेजिंग। अप्लाइंग एविडेंस टू प्रैक्टिस, और फिर लास्ट स्टेज होगी, अगर क्वालिटी का एविडेंस आपको मिल गया और उसमें उसका आंसर मिल गया कि इस तरह के पेशेंट का ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज करना चाहिए, तो उस एविडेंस को आप अप्लाई कर दें अपनी प्रैक्टिस पे, यानी उस पेशेंट पर। अच्छा, सम रिसर्चर्स इंक्लूड 5th स्टेप, यानी इस 4 स्टेप के अलावा एक 5वां स्टेप भी कुछ रिसर्चर कहते होना चाहिए, विच इज़ असेसिंग हाउ वेल द इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग स्टेप्स 1 through 4 एंड डिटरमिंग हाउ टू इम्प्रूव द प्रोसेस इन फ्यूचर। ये कुछ रिसर्चर ये कहते हैं कि ये 4 स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक 5th स्टेप भी है कि आप ये चेक रखें, इस पे इसका भी ऑडिट करें कि आप अगर इसको प्रोसेस को कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर रहे हैं। क्योंकि लिटरेचर सर्चिंग के लिए और लिटरेचर को अप्रेज करने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, बैकग्राउंड, फिजियोलॉजी की, फार्माकोलॉजी की, एनाटॉमी की, बायोकेमिस्ट्री की, क्लिनिकल मेडिसिन की, क्लिनिकल फार्मेसिस की, डिजीज़ स्टेट मैनेजमेंट की, स्टैटिस्टिक्स की, मैथमेटिक्स की, और इस वजह से जो है वो आप तभी, अगर आपको ये तमाम नॉलेज होगी तो यू कैन अप्रेज द एविडेंस इन ए राइट वे, रादर देन आपके पास किसी की कोई एरिया वीक है तो उसकी बेस पे आप करने जा रहे हैं, तो आप फिर वो एविडेंस को जो है सही मानों में अप्रेज यानी उसका क्रिटिकल एवेल्युएशन नहीं कर सकेंगे। तो ये जो है वो इसलिए 5th स्टेप रखा है कि आप ये तमाम स्टेप्स को कितना ज़्यादा बेहतर अंदाज में करते हैं, आपकी नॉलेज और स्किल्स इस काम को करने के लिए कितने परफेक्ट हैं और कितने एक्यूरेट हैं। तो ये हैं स्टेप्स इन प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जो कि नेसेसरी हैं किसी भी रिसर्चर के लिए कि वो जब लिटरेचर की सर्चिंग कर रहा है। सर्च स्ट्रेटजी टिप्स क्या होंगी इस सिचुएशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई द की कॉन्सेप्ट, यानी बिल्कुल की कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट सिचुएशन के हिसाब से आपका क्वेश्चन होना चाहिए, आंसरेबल, बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड आंसरेबल क्वेश्चन। फिर क्या है, डिटरमिन द ऑल्टरनेटिव टर्म्स फॉर दीज कॉन्सेप्ट्स इफ़ नीडेड, अगर कोई ऑल्टरनेटिव टर्म्स हैं और हैं तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, और वो किस तरह से यूज़ करनी है सर्चिंग के दौरान वो भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। जैसे हमने बात की थी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, आपने पूरा लिखा या AMI लिखा, एंड देन रिफाइन योर सर्च टू डेट्स की बेस पे कि कब से कब तक का डेटा चाहिए। स्टडी ग्रुप की बेस पे, लाइक स्टडी ग्रुप आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट्स विद स्टेज 5 किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, स्टेज 4 हार्ट फेलियर एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन। तो आपने स्टडी ग्रुप को ऐसे डिवाइड कर लिया जहाँ पे भी एज अप्रोप्रिएट हो। प्रैक्टिस हेल्प्स, strategies and styles will differ according to personal choice and professional disciplines। अब जिसकी जो प्रैक्टिस होगी, जिस तरह से भी वो अपनी प्रोफेशनल डिसिप्लिन में काम कर रहा है, वो स्ट्रेटजी एंड स्टाइल्स थोड़ा बहुत डिफर कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मैथडोलॉजी यही होगी और यही इन्हीं टिप्स की बेस पर सर्चिंग की जाएगी लिटरेचर की। तो इस तरीके से आपने लेके चलना है लिटरेचर सर्चिंग को, और इसी तरीके से आप यू कैन बी ए गुड researcher and you can be a good finder of research at or finder of evidences in different categories और areas, या जो भी specific topic है जिस पर आप जो है वो रिसर्च करने जा रहे हैं।
तो इसके साथ ही अब ये लेक्चर हम एंड पे पहुंचा चुके हैं, ये टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं। और इसमें जो है वो आई होप कि ये लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। आई होप कि जो है आपने इस लेक्चर से जो है वो अपनी रिसर्च के लिए बहुत कुछ लर्न किया होगा। और मैं जो हूँ इसके जो है वो लेक्चर सुनने के बाद मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं बहुत सारी इसी तरह की जो है वो प्रेजेंटेशंस और लेक्चर्स जो है वो डालता रहता हूँ आप ही लोगों के लिए, ताकि आपको ये किसी न किसी ग्राउंड पर हेल्पफुल हो सके। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हैव एंजॉयड इट।